Today we'll talk about the eukaryotic chromosome. What is the structure of the eukaryotic chromosome? This eukaryotic chromosome is better studied during the metaphase, because during this metaphase the chromosome is having two chromatids, and it is most convenient to study the chromosome during metaphase. So we have got important components of the eukaryotic chromosome, or we have telomeres, we have centromere, have pellicle, we have secondary construction, chromonimeta, we have matrix, we have satellite. In order to explain the structure of the eukaryotic chromosome, we'll make a diagram of eukaryotic chromosome. ये एक टिपिकल eukaryotic क्रोमोसोम है, जिससे टिपिकल eukaryotic क्रोमोसोम. Structure of eukaryotic chromosome. This part is ultrastructure of eukaryotic chromosome. This part, this structure, it is called as pellicle. So this pellicle is simply the we have pellicle. What this pellicle is? It is simply the thin outer covering or sheath of the chromosome. So pellicle is outer covering of chromosome. This pellicle, it is pellicle is outer covering of the chromosome, or we can say that the outer sheath of the chromosome. This is very thin. This represents the pellicle. Then we have got this, it is ground substance, what is called as matrix. ये ground substance होता है, जिसको हम matrix भी बोलते हैं, और this part इसको हम matrix बोलते हैं. Matrix जो है, it is simply the, we have matrix, इसको हम ground substance बोलते हैं क्रोमोसोम की, ground substance of chromosome. This matrix जो है, it is the ground substance of the chromosome, and this matrix, it contains, इसमें proteins होते हैं. In addition to this, इसमें small quantities of lipids और RNA भी होता है. Then we have got this structure, इसको हम chromonimeta बोलते हैं. Chromonimeta. This is chromonimeta. This structure is called as chromonimeta. इसको हम क्रोमोनिमेटा भी बोलते हैं. और
इसका सिंगुलर जो है क्रोमोनिमा है, क्रोमोनिमेटा एंड सिंगुलर जो है दैट इज क्रोमोनिमा. इट हैज सिंगुलर क्रोमोनिमा. दिस क्रोमोनिमेटा जो है इट इज फॉर्म्स द बल्क ऑफ द क्रोमोसोम. ये ज्यादातर हिस्सा जो है क्रोमोसोम का वो क्रोमोनिमेटा का ही बना हुआ होता है. और दिस क्रोमोनिमेटा इट इज सिंपली द एसोसिएशन ऑफ, इट इज सिंपली द कॉम्बिनेशन ऑफ, एक तो ये डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स का बना हुआ होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स. सो वी कैन से दैट कि ये जो क्रोमोनिमेटा जो है इट इज सिंपली द कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स. और ये क्रोमोनिमेटा जो है बल्क ऑफ क्रोमोसोम तैयार करता है. देन वी हैव गॉट दिस क्रोमोनिमेटा जो है अल्टीमेटली वो एक सोलिनॉइड स्ट्रक्चर बनाता है जो रिप्रेजेंट बेसिकली क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करता है. और बल्क ऑफ द क्रोमोसोम जो है वो इसी क्रोमोनिमेटा का बना हुआ होता है. ज्यादातर पोर्शन जो है दिस क्रोमोसोम का ज्यादातर पोर्शन वो इस क्रोमोनिमेटा का ही होता है. देन वी हैव गॉट दिस इज सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर जो है इसको हम सिंपली सेंट्रोमियर जो है इट इज सिंपली कॉल्ड द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन. इसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं. इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन. और इस सेंट्रोमियर जो है इस पर एक प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं. This centromere it bears a proteinaceous structure what is called as kinetochore. और ये kinetochore जो है ये it becomes a site for the attachment of microtubules. इसको microtubules अटैच हो जाते हैं. माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है जब इस काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं जो सेंट्रोमियर पर होता है तो फिर वो मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स करते हैं ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ द सेल डिवीजन. दैट मीन्स दिस सेंट्रोमियर इट बियर्स एन इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जिसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं. काइनेटोकोर इज सिंपली अ प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर और उस काइनेटोकोर को फिर अटैच होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स during the anaphase of the cell division or they help in the separation of the chromatids during the anaphase of the cell division. और ये जो सेंट्रोमियर जो है इस पर इसमें एक सैटेलाइट डीएनए होता है. सैटेलाइट डीएनए. दिस सेंट्रोमियर इट possesses a special type of DNA that is called a satellite DNA. इस सैटेलाइट डीएनए क्या होता है? This satellite DNA is highly repetitive non-coding DNA sequences. कुछ DNA जो होता है which does not code for the proteins और वो DNA हम सेंट्रोमियर पर ही देखते हैं और that is called as satellite. Satellite DNA जो है it is highly repetitive non-coding. ये अमीनो एसिड्स और प्रोटीन इसको कोड नहीं करता है. हाईली रिपीटेटिव नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस इसमें होते हैं. अब इसकी फंक्शन क्या है? सैटेलाइट डीएनए की फंक्शन इट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द क्रोमोसोम. ये स्टेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन करता है. Integrity of chromosome. It maintains the stability and integrity of chromosome, this satellite DNA. Then we have another important component that is called a secondary construction. This is secondary construction. Secondary
constriction. This site is called a secondary constriction. Secondary constriction जो है इसको हम secondary constriction. This secondary constriction, it is also called as nucleolar organizing region. इसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं nucleolar organizing region, NOR, nucleolar organizing region. और ये secondary constriction जो है ये एक narrow constriction होती है क्रोमोसोम पर in addition to primary constriction. This secondary constriction, it is a narrow constriction present on the chromosome in addition to primary constriction. This secondary constriction जो है ये एक्ट करते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर से एक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजर्स. दैट मीन्स वो क्या होता है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर्स. न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर जो है दे हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोलाई ड्यूरिंग इंटरफेज. ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है दैट मीन्स ये सिंथेसाइज करते हैं न्यूक्लियोलाई सिंथेसाइज करने में मदद करते हैं ड्यूरिंग इंटरफेस ऑफ द सेल डिवीजन. और ये कुछ देयर आर ओनली फ्यू क्रोमोसोम्स जिन पर ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है. और जो पार्ट बियॉन्ड द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं. इट्स कॉल्ड ए सैटेलाइट. सो वी कैन से दैट कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन. और न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक्ट करते हैं एज ए न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर्स. ये सिंथेसाइज करते हैं न्यूक्लियोलाई ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ द सेल डिवीजन. और जो द पोर्शन ऑफ द क्रोमोसोम which is beyond the secondary constriction, it is called as satellite. Satellite. What is satellite? ये वो portion of chromosome है which is present beyond this portion. It is called as satellite. The portion of chromosome beyond the secondary constriction is known as satellite. इसको हम trabant भी बोलते हैं, TRABNT. This secondary constriction, it is also known as trabant. और those chromosomes which bear the satellite, उनको हम sat chromosomes बोलते हैं, sat chromosomes. So what are sat chromosomes? Sat chromosomes are those chromosomes जिनमें secondary constriction के बाद एक स्मॉल पोर्शन होता है क्रोमोसोम में जिसको हम सैटेलाइट बोलते हैं. और उन क्रोमोसोम्स को हम सैट क्रोमोसोम्स बोलते हैं. सैट क्रोमोसोम्स आर दोज क्रोमोसोम्स विच बियर सैटेलाइट. सो सैटेलाइट इज द पोर्शन विच इज बियॉन्ड द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्रोमोसोम. देन वी हैव गॉट एन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट इज टीलोमेयर्स. दीज आर टीलोमेयर्स. So what are telomeres? Telomeres are terminal ends of the chromosome. Telomere ये जो टर्मिनल एंड्स होते हैं क्रोमोसोम के, टेलोमेयर ये टर्मिनल एंड्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. These are terminal ends of chromosome. और ये टेलोमेर जो है these telomeres they contain इनमें multiple repeats of short DNA sequences होते हैं. For example इनमें multiple repeats of TTA GG होता है. So these telomeres they contain multiple repeats of short DNA sequences like TTA GGA. ये टीलोमेयर जो है ये हेल्प करते हैं इन क्रोमोसोम्स को टू गेट अटैच्ड टू द न्यूक्लियर एनवेलप. लेकिन इनकी ये सबसे बड़ी ये प्रॉपर्टी है कि ये टीलोमेयर जो है ये प्रिवेंट करते हैं रिकॉम्बिनेशन और स्टिकिंग बिटवीन द एंड्स ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम्स. फॉर एग्जांपल अगर 2, 4 या 5 क्रोमोसोम इनके एंड जो है ये पॉसिबिलिटी रहती है कि वो स्टिक टुगेदर करते हैं. लेकिन टीलोमेयर्स की वजह से दीज
द एंड्स जो होते हैं वो स्टिक टुगेदर नहीं करते हैं. इट इज बिकॉज ऑफ द टीलोमेरस. सो टीलोमेरस जो है they prevent the sticking between the ends of different chromosomes. Telomeres, they prevent sticking, or we can say that recombination between ends of different chromosomes. Although they allow these telomeres, they allow the chromosomes to get attached to the nuclear envelope, but they prevent the sticking or recombination between the ends of different chromosomes. और टीलोमर जो है इसकी लेंथ को मेंटेन करता है एक एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज टीलोमेरेस. There is an enzyme that is called as telomerase. This telomerase is an enzyme. वो इस टीलोमेयर की लेंथ जो है मेंटेन करता है, क्योंकि और जिस डीएनए सिंथेसिस के दौरान ये पॉसिबिलिटी रहती है कि इसकी जो लेंथ जो है टीलोमेयर्स वो अच्छी तरह सिंथेसाइज नहीं हो पा रहे, तो उसके लिए एक खास एंजाइम है दैट इज कॉल्ड एज टीलोमेरेस. वो टीलोमेरेस जो है एंजाइम विच मेंटेन्स द लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम टीलोमेयर्स ड्यूरिंग द डीएनए सिंथेसिस. और ये टीलोमेरेस जो है ये एक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन एंजाइम है. ये एक एंजाइम है बट इट इज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन एंजाइम. इट इज अ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन एंजाइम. इट इज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन एंजाइम. दैट मीन्स ये दो कंपोनेंट्स का बना हुआ होता है दिस टीलोमेरेस. एक है प्रोटीन. जनरली एंजाइम्स प्रोटीन ही होते हैं, लेकिन कुछ राइबोजाइम्स भी होते हैं, आरएनए के बने हुए होते हैं. और ये टीलोमेरेस जो है इट इज अ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन एंजाइम. इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड आरएनए, एंड दैट आरएनए जो है वो कंप्लीमेंट्री होता है टू द टीलोमेरिक डीएनए सीक्वेंसेस. इसमें आरएनए होता है विच इज जो कंप्लीमेंट्री होता है, कंप्लीमेंट्री टू टीलोमेरिक DNA sequences. So this was regarding the structure of the eukaryotic chromosome. We have most important pellicle, which is the outer covering of the chromosome. Then we have got matrix. It represents the ground substance of the chromosome. उसके बाद है क्रोमोनिमीटा. यही बेसिकली डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं. बल्क ऑफ द क्रोमोसोम बना होता है. देन वह प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जिसको हम सेंट्रोमियर भी बोलते हैं. और यहाँ पर काइनेटोकोर होता है जिस पर माइक्रोट्यूब्यूल अटैच होते हैं, और ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ द सेल डिवीजन ये मूवमेंट ऑफ क्रोमेटिड्स करता है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स. देन वी हैव गॉट सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जिसको हम नॉर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन भी बोलते हैं. और ये साइट होता है जहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं न्यूक्लियोलाई ड्यूरिंग इंटरफेज. और जो पोर्शन बियॉन्ड द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं. सैटेलाइट जो है जिन क्रोमोसोम्स में सैटेलाइट प्रेजेंट होता है उनको हम सैट क्रोमोसोम्स बोलते हैं. देन वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज टीलोमेयर्स जिनको हम टर्मिनल एंड्स बोलते हैं. उनमें हाईली रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस लाइक टीटीए जीजीए. और इनको मेंटेन करने के इन टीलोमेयर्स को मेंटेन करने के लिए इनकी लेंथ मेंटेन करने के लिए एक खास एंजाइम होता है टीलोमेरेस जो एक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन एंजाइम है. थैंक्स.